کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس میں سب سے بڑا موڑ آیا راجہ رنچانا کے اسلام قبول کرنے سے۔ شاہ میر وہ رنچانا کے دربار میں وزیر تھے اور پھر 1586 میں مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو جیت کر مغل سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ جب مغل سلطنت کمزور پڑی تو 1753 میں احمد شاہ درنگی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اب کشمیر افغان درنگی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ افغان ظلم سے پریشان ہو کر کچھ کشمیری سرداروں نے پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ سے مدد مانگی۔ پھر آیا سال 1846، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے بیچ جنگ ہوئی جس میں سکھ ہار گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے امرتسر میں ایک ایگریمنٹ کیا جسے ٹریٹی آف امرتسر کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کی شروعات میں خاص کر 1920 اور 30 میں کشمیری مسلمانوں میں سیاسی بیداری پولیٹیکل اویکنگ آئی۔ انڈیا اس مسئلے کو جنوری 1948 میں یونائٹڈ نیشن لے گیا۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل نے کئی ریزولوشنز پاس کیے۔ 1987 کی الیکشن کی دھاندلی، سیاسی فرسٹریشن، افغان جہاد کے اثرات اور پاکستان کی مدد کے الزامات کے بیچ 1989 کے آس پاس کشمیر میں ہتھیار بند تحریک شروع ہو گئی۔ 5 اگست 2019 انڈین گورنمنٹ نے ایک طرفہ فیصلے میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کشمیر کی پوری ہسٹری کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کو کچھ دن پہلے ہوئے ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بارے میں بتا دینا چاہتے ہیں جو انتہائی افسوسناک حادثہ تھا۔ جنت کہے جانے والے کشمیر کی ایک فیمس سٹی پہلگام میں رپورٹ کے مطابق 22 اپریل 2025 کو بائیسرن، جسے منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور ٹورسٹ کی بہت پسندیدہ جگہ ہے، وہاں کچھ نامعلوم ہتھیار بند لوگوں نے بے گناہ ٹورسٹ پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس دہشت گرد حملے میں کم سے کم 28 قیمتی جانیں چلی گئیں جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ حملہ نہ صرف ان معصوم لوگوں پر تھا جو وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے آئے تھے، بلکہ یہ سیدھا کشمیر کے ٹورزم سیکٹر پر بھی اٹیک تھا جو برسوں کے برے حالات کو ریکور کرنے کے بعد آہستہ آہستہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھنونی حرکت کے پیچھے کون لوگ شامل تھے؟ انیشیل رپورٹس اور میڈیا میں آئے کچھ دعووں کے مطابق اس میں 2 لوکل دہشت گرد جن کے نام عادل اور آصف بتائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ پشتو زبان بولنے والے 2 پاکستانی ایلیمنٹس کے انوالو ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ابھی علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ وروں کی تلاش کے لیے ایک ایکسٹینسو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس اٹیک کے بعد گورنمنٹ اور لوگوں کی طرف سے بہت مذمت کی گئی ہے اور وکٹمز کو انصاف دلانے کی آواز اٹھ رہی ہے، لیکن اس حملے نے کشمیر کے ٹورزم کے فیوچر پر ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ کیا اس حملے سے ٹورسٹ میں خوف پیدا ہوگا یا یہ مشکل وقت لوگوں کو پیس اور بہتر کل کے لیے یونائٹ کرے گا؟ ویسے ہزاروں لوگوں نے اپنی بکنگ کینسل کر دی ہے جو کشمیر جانے والے تھے، اور جو لوگ وہاں گھومنے گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ آنے والا کل ہی بتائے گا کہ کشمیر کے لوگ جو زیادہ تر ٹورزم پر بیسڈ تھے ان کا کیا ہوگا، لیکن کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی ہمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کچھ ٹورسٹ کی جان بھی بچائی، جس میں ایک بہادر پونی رائڈر سید عادل حسین جو ان ٹیررسٹ سے بہادری کے ساتھ لڑا، اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، مطلب وہ مارا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کشمیر کو پھر سے محنت کرنی پڑے گی اور گورنمنٹ کو بہتر پروٹیکشن پرووائڈ کرانی پڑے گی، تبھی لوگوں کا وشواس واپس آ سکتا ہے۔ تو امید ہے جو بھی اس کے پیچھے ہیں وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کشمیر کی ہسٹری، یا کشمیر دنیا کے نقشے پر کیسے آیا اور لوگوں کو اس کی خوبصورتی کا احساس کب ہوا، کون کون سے ریلیجن کے لوگوں نے اس زمین پر راج کیا، اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوں۔ تو آج ہم اس کشمیر کی داستان کو اوتھینٹک سورسز کی روشنی میں شروع سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے وقت کے پنوں کو پلٹتے ہیں۔ کشمیر کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہاں ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ پرانی کتابیں جیسے کلہانہ کی راجہ ترنگینی اس دور کا ذکر کرتی ہے۔ یہ وہ زمین تھی جہاں بڑے بڑے اسکالرز، راجہ اور رشی منی ہوئے۔ ایک وقت تھا جب کشمیر نالج اور وزڈم کا سینٹر تھا۔ پھر اسلام کی روشنی کشمیر میں دھیرے دھیرے پھیلی۔ کچھ مسلم سوداگر اور سپاہی پہلے بھی آئے ہوں گے، لیکن اس کا صحیح معنوں میں آغاز یعنی شروعات ہوئی 14ویں صدی میں۔
में, और इसमें सबसे बड़ा मोड़ आया राजा रिंचाना के इस्लाम कबूल करने से। रिंचाना एक तिब्बतन बुद्ध शहजादा था जो सियासी हालात की वजह से कश्मीर आया था, जो बाद में यहाँ का राजा बना। उसके बारे में ये फेमस था कि वो एक सच्चे दीन की तलाश में था। उस वक्त के एक सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शराफुद्दीन अब्दुर रहमान, जिन्हें लोग प्यार से बुलबुल शाह कहते थे, उनसे मिलकर रिंचाना इतना इंस्पायर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने अपना नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन शाह, जो कश्मीर के पहले मुस्लिम हुक्मरान बने लगभग 1320 में। ये कश्मीर में इस्लाम की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। सुल्तान सदरुद्दीन का राज छोटा था, लेकिन इसने आने वाले दौर की बुनियाद रख दी थी। सुल्तान सदरुद्दीन के बाद कुछ टाइम गैर मुस्लिम हुकूमत रही, लेकिन फिर एक और अहम शख्सियत सामने आई, शाह मीर। वो रिंचाना के दरबार में वजीर थे। उन्होंने सुल्तान शमशुद्दीन शाह मीर के नाम से तख्त संभाला लगभग 1339 में, और कश्मीर में शाह मीरी खानदान की मजबूत बुनियाद रखी। इस खानदान ने लगभग 222 साल तक कश्मीर पर राज किया, और इसी दौर में इस्लाम कश्मीर में तेजी से फैला। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह तलवार का जोर नहीं, बल्कि उस वक्त के आलिमों की मोहब्बत भरी तालीम और उनके नेक इरादे थे। ईरान और सेंट्रल एशिया से बहुत से सूफी बुजुर्ग कश्मीर आए। इसमें सबसे मशहूर नाम है हजरत मीर सैयद अली हमदानी, जिन्हें शाह हमदान भी कहा जाता है। वो अपने 700 स्टूडेंट्स के साथ कश्मीर आए लगभग 1372 के आसपास। उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को दीन की सही समझ दी, जिसने कश्मीर की सोसाइटी पर गहरा असर डाला। और उन्होंने यहाँ पर बिजनेस भी फैलाया, जैसे हैंडीक्राफ्ट, खूबसूरत शॉल बनाना, जो आज भी कश्मीर की पहचान है। उनके बाद उनके बेटे मीर मोहम्मद हमदानी ने भी यही काम जारी रखा। इस दौर में कश्मीर के अपने अजीम सूफी बुजुर्ग पैदा हुए। हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिन्हें अलमदार कश्मीर या नंद ऋषि भी कहते हैं, ये 1377 से 1440 तक रहे। उन्होंने बिल्कुल कश्मीरी अंदाज में इस्लाम की बात की। उन्होंने सूफी सिलसिला भी शुरू किया, जो हिंदू और मुसलमान दोनों में पॉपुलर था, जिसने मजहबी भाईचारे को बढ़ाया। उनकी प्यारी शायरी, जिसे शिरक्स या शुरुक्स कहते हैं, आज भी कश्मीरी जुबान का अनमोल हिस्सा है। अब बात आती है शाह मीरी सल्तनत के सबसे मशहूर और सबसे प्यारे बादशाह की, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की, जो 1420 से 1470 तक रहे। उनका दौर कश्मीर की तारीख का सुनहरा दौर, गोल्डन एज माना जाता है। सोचो, वो मुसलमान बादशाह होकर भी वो गैर मुसलमानों के साथ इतने इंसाफ और प्यार से पेश आए। उन्होंने पहले के जमाने में चले गए कश्मीरी पंडितों को इज्जत से वापस बुलाया, उनकी जमीनें लौटाई, मंदिर बनवाए, और जिजिया, जो गैर मुसलमानों पर टैक्स होता था, माफ कर दिया। उन्होंने तालीम, आर्ट, खेती बाड़ी, हर चीज को बढ़ावा दिया। महाभारत और राजा तरनगिनी का फारसी में ट्रांसलेशन भी करवाया। उनके राज में बहुत अमन था, खुशहाली थी। ये दौर मुस्लिम हुकूमत के इंसाफ की एक मिसाल है। चक हुकूमत और मुगल दौर। शाह मीरी खानदान कमजोर हुआ और चक खानदान ने कश्मीर पर हुकूमत की लगभग 1561 से 1586 तक। चक शिया मुस्लिम थे और उनके दौर में कुछ फिरका वाराना मसले भी हुए। सियासी तौर पर भी ये उथल पुथल का दौर था। और फिर 1586 में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को जीतकर मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अब कश्मीर एक सूबा यानी प्रोविंस बन गया। मुगलों ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सेट किया, सड़कें बनवाई और वो खूबसूरत मुगल गार्डन्स बनवाए जो आज भी मशहूर हैं। निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मे शाही। मुगल बादशाह खासकर जहांगीर तो कश्मीर की खूबसूरती के दीवाने थे। उन्हीं का वो मशहूर कौल है, गर फिरदौस बर रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जिसका मतलब अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। मुगल दौर में अमन तो था, लेकिन कश्मीर की अपनी खुद मुख्तारी, लोकल ऑटोनॉमी कम हो चुकी थी। अब कंट्रोल दिल्ली और आगरा से होता था, जिससे फारसी जुबान और कल्चर का असर भी बढ़ा। अफगान और सिख दौर, जुल्म व सितम का ज़माना। जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ी तो 1753 में अहमद शाह दुरंगी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और अब कश्मीर अफगान दुरंगी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये दौर लगभग 1753 से 1819 तक चला। कश्मीरी मुसलमानों के लिए बहुत सख्त और जुल्म भरा था। अफगान गवर्नर अपने जुल्म और भारी टैक्सेस के लिए बदनाम थे। लोगों का खून चूसा जा रहा था। मस्जिदों की बेहुरमती की गई। मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई। ये कश्मीर की तारीख का एक काला चैप्टर है। अफगान
अफगान जुल्म से परेशान होकर कुछ कश्मीरी सरदारों ने पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। 1819 में रंजीत सिंह की फौज ने अफगान गवर्नर को हरा दिया और कश्मीर सिख राज का हिस्सा बन गया। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के लिए जैसा कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो गई। सिख दौर 1819 से 1846 तक चला, जो मुसलमानों के लिए इंतहाई सख्त था। सिख गवर्नरों ने भी मुसलमानों पर जबरदस्त टैक्स लगाए। उनसे बेगर या बेगार यानी जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। श्रीनगर की जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया, आजान देने पर पाबंदी लगा दी गई और गाय मारने पर सजाए मौत रखी गई। मुसलमानों की हालत गुलामों जैसी हो चुकी थी। उनकी जमीनें छीन ली गईं और वो फाइनेंशियली बर्बाद कर दिए गए। इस दौर ने मुसलमानों में गुलामी और बेबसी का गहरा एहसास पैदा किया। डोगरा राज, एक रियासत का सौदा। फिर आया साल 1846। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच जंग हुई, जिसमें सिख हार गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अमृतसर में एक एग्रीमेंट किया जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाही रुपयों के बदले में पूरा कश्मीर, जम्मू और लद्दाख पहले ही उसके पास थे, बेच दिया और ये एक तरह से सौदा कर लिया। इस तरह बनी रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसका हुक्मरान था एक हिंदू डोगरा राजा, जबकि रियासत की ज्यादातर आबादी खासकर वादी कश्मीर में मुसलमान रहते थे। कश्मीरी मुसलमान इस सौदे को हमेशा अपनी तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती समझते हैं। उनके मुताबिक उन्हें और उनकी जमीन को माल की तरह बेच दिया गया, उनकी मर्जी को पूछे बगैर। डोगरा राज के 101 साल भी कश्मीरी मुसलमानों के लिए मुश्किलों से भरे थे। 1846 से 1947 तक सरकार डोगरा हिंदू एलिट के हाथ में थी। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों, तालीम और जमीन की मिल्कियत में जबरदस्त भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। ज्यादातर जमीनें हिंदू पंडितों या डोगरा जागीरदारों को दे दी गईं और मुस्लिम किसान सिर्फ उनके लिए काम करते थे, जिन पर भारी लगान और टैक्स थे। बेगर भी किसी न किसी शक्ल में चलती रही। मुसलमानों में गुर्बत, इलिटरेसी और सियासी लाचारी आम थी। सियासी बेदारी और आज़ादी की जद्दोजहद। 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1920 और 30 में कश्मीरी मुसलमानों में सियासी बेदारी, पॉलिटिकल अवेकिंग आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारों से पढ़कर आए नौजवानों ने मुसलमानों के हक, राइट्स के लिए आवाज उठानी शुरू करी। 1931 में एक बहुत अहम वाकया हुआ। जम्मू में ईद के खुतबे में पुलिस ने दखल दिया और कुरान पाक की बेहुरमती की खबर फैली। इस पर कश्मीर में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जमा हुए निहत्थे लोगों पर महाराजा की पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे 22 मुसलमान शहीद हो गए। इस दिन को कश्मीर में योम शुहदा के तौर पर याद किया जाता है और ये कश्मीरी मुसलमानों की जद्दोजहद में एक टर्निंग पॉइंट है। इस वाकये के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े लीडर बनकर उभरे। उन्होंने मीर वाइज यूसुफ शाह के साथ मिलकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। ये 1932 की बात है। मकसद था रियासत के मुसलमानों की सियासी, माशी और समाजी हुकूक की हिफाजत करना। लेकिन बाद में 1939 में शेख अब्दुल्ला ने सेक्युलर सोच की तरफ जाते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया, ताकि गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हो सके। हालांकि मीर वाइज यूसुफ शाह और चौधरी गुलाम अब्बास जैसे लीडर्स अलग हो गए और उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा जिंदा रखा, जो आगे चलकर पाकिस्तान से जुड़ने की हिमायत करती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा के खिलाफ क्विट कश्मीर तहरीक चलाई, कश्मीर छोड़ो तहरीक चलाई, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला और उनके साथी कई बार जेल गए। अब आते हैं बंटवारे पर। बंटवारे हिंद और कश्मीर का मसला। बरतानवी राज खत्म हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और 2 आज़ाद मुल्क बने, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक्त 560 से ज्यादा देसी रियासतें थीं, जिनको ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के साथ मिल जाएं या फिर आजाद रहें। हालांकि आजादी का ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं था। अब जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी। क्यों? देखिए, कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी थी। रियासत की टोटल आबादी में मुसलमान ज्यादा थे, लगभग 77%, खासकर वादी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। और वहाँ का रूलर एक हिंदू राजा था, महाराजा हरी सिंह। और जियोग्राफिकली सियासत
की सरहदें इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। इकोनॉमिक लिंक्स ज्यादातर उस इलाके से जुड़े थे जो पाकिस्तान बना। पॉपुलर सेंटिमेंट ये थे, वादी में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोर था जो शुरू में इंडिया के सेकुलर आइडिया के करीब थी पर ऑटोनॉमी चाहती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा तबका पाकिस्तान से मिलना चाहता था। पूंछ और मीरपुर में तो जबरदस्त ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से जुड़ा जाए और गिलगित के लोगों ने तो खुद ही पाकिस्तान से जुड़ने का ऐलान कर दिया था। महाराजा हरि सिंह डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, शायद वो आजाद रहना चाहते थे। उन्होंने दोनों मुल्कों से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी जैसा है वैसा चलने दो एग्रीमेंट करने की कोशिश की। पाकिस्तान मान गया लेकिन इंडिया ने कहा नहीं, पहले बात होगी। इसी दौरान रियासत के पूंछ इलाके में महाराजा के खिलाफ हथियारबंद बगावत शुरू हो गई। ये लोग ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 2 के रिटायर्ड मुस्लिम फौजी थे जो महाराजा के टैक्स और जुल्म से परेशान थे और पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। महाराजा की फौज ने इस बगावत को सख्ती से कुचलने की कोशिश की। इधर जम्मू में एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रुप्स ने मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। हजारों मुसलमान मारे गए या पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो गए और इस माहौल ने हालात को और खराब कर दिया। ट्राइबल इन्वेजन एनेक्सेशन। फिर अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP से पश्तून कबाइली लश्कर ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उनका कहना था कि वो कश्मीरी मुसलमान भाइयों को महाराजा के जुल्म और जम्मू के कत्लेआम से बचाने आए हैं। पाकिस्तान हमेशा इनकार करता आया है लेकिन माना जाता है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसमें शामिल थी। ये लश्कर मुजफ्फराबाद से बारामुल्ला तक पहुंच गए। जब कबाइली लश्कर श्रीनगर के पास पहुंचे तो घबराए हुए महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से फौजी मदद मांगी। इंडिया ने शर्त रखी कि महाराजा पहले इंडिया के साथ मिलने के दस्तावेज पर साइन करें, ये डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने साइन कर दिए। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज हवाई जहाजों से श्रीनगर उतरी और कबाइलियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। तो ये एक्सेशन कश्मीरी मुसलमानों के लिए एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। कश्मीरी और पाकिस्तानी सोर्सेस इसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि महाराजा उस वक्त कंट्रोल खो चुका था, बगावत चल रही थी, तो उसे इतना बड़ा फैसला करने का हक नहीं था। ये आवाम की मर्जी के खिलाफ था जो शायद पाकिस्तान से मिलना चाहते थे या कम से कम अपनी राय देना चाहते थे। इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेशन कबूल करते वक्त ये लिखा था, जैसे ही अमन होगा इस फैसले को आवाम की मर्जी के मुताबिक फाइनल किया जाएगा। ये वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और कश्मीर आज भी इंडिया का हिस्सा है। शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त इंडिया से जुड़ने की हिमायत की। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया कश्मीर की ऑटोनॉमी का एहतराम करेगा और ये नेहरू के सेक्युलर इंडिया में मुसलमानों के लिए बेहतर होगा, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में भी इस पर इख्तिलाफ था। पहली जंग और तकसीम। 1947 से 48 में हिंदुस्तानी फौज के आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में पहली जंग शुरू हो गई। इसी दौरान गिलगित स्कॉट्स ने महाराजा के गवर्नर को हटाकर गिलगित का एक्सेशन पाकिस्तान से कर दिया। पूंछ के बागियों ने पाकिस्तान की मदद से एक इलाके पर कंट्रोल किया जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया और फिर इंडिया इस मसले को जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन ले गया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशंस पास किए। उनमें कहा गया, नंबर 1 सीज फायर हो, नंबर 2 पाकिस्तानी फौज और कबाइली हटाए जाएं, नंबर 3 हिंदुस्तानी फौज कम की जाए और आखिर में नंबर 4 फिर UN की निगरानी में एक फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसाइट हो ताकि कश्मीरी आवाम खुद फैसला करे कि वो इंडिया या पाकिस्तान किसके साथ रहना चाहते हैं। 1 जनवरी 1949 UN की कोशिशों से सीज फायर हुआ, जंग रुक गई, लेकिन रियासत जम्मू एंड कश्मीर 2 हिस्सों में बट गई। नंबर 1 इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, जम्मू, वादी कश्मीर और लद्दाख। इसे आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला था जो 2019 में खत्म कर दिया गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नंबर 2 पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। सीज फायर लाइन को बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC कहा गया, लेकिन वो UN का वादा किया हुआ प्लेबिसाइट कभी नहीं हो सका। कभी नहीं पूछा गया कश्मीरियों से कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने पहली शर्त फौज हटाना पूरी नहीं की। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया ने कभी कश्मीरी आवाम को उनके हुकूक नहीं दिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देने में कभी सीरियस नहीं हुआ। और कश्मीरी मुसलमान, खासकर वादी के लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनसे किया गया वादा तोड़ा गया और उन्हें अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका नहीं दिया गया। 1947 के बाद आर्टिकल 370 और शेख अब्दुल्ला।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, अपना अलग संविधान, अपना झंडा और कुछ मामलात में वो सेल्फ डिपेंडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे इस ऑटोनॉमी को कमजोर किया गया। जब शेख अब्दुल्ला वहां के पीएम वजीर आजम बने, उन्होंने इस पर एतराज किया तो उन्हें 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसमिस करके गिरफ्तार कर लिया। उन पर पाकिस्तान से साजिश का इल्जाम लगा। वो अगले 22 साल में से ज्यादातर वक्त जेल में या नजरबंद रहे। इससे कश्मीरी मुसलमानों में इंडियन स्टेट के खिलाफ बेइतमादी और दूरी बढ़ी। वॉर्स 1965 में फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई कश्मीर को लेकर, और 1971 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कहा गया कि मसला आपस में बात करके हल करेंगे, और एलओसी को करीबन पक्की सरहद मान लिया। फिर 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इन जंगों ने मसलों को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कश्मीर में इलेक्शंस हुए लेकिन अक्सर उन पर धांधली के इल्जाम लगे, खास तौर पर 1987 के इलेक्शन पर। इल्जाम है कि अपोजिशन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF की जीत तय हुई कैंडिडेट्स को हराया गया। इसने कश्मीरी नौजवानों को पॉलिटिकल प्रोसेस से बहुत मायूस किया। राइज ऑफ मिलिटेंसी, 1987 की इलेक्शन की धांधली, सियासी फ्रस्ट्रेशन, अफगान जिहाद के असरात और पाकिस्तान की मदद के इल्जामात के बीच 1989 के आसपास कश्मीर में हथियारबंद तहरीक शुरू हो गई। हजारों कश्मीरी नौजवानों ने हथियार उठा लिए। कुछ पाकिस्तान से मिलना चाहते थे और कुछ पूरी आज़ादी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का रद्द अमल और ह्यूमन राइट वायलेशन। इस बगावत को कुचलने के लिए इंडिया ने लाखों फौजी तैनात किए। AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कानून लाए गए जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत पावर्स देते हैं और उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाते हैं। इस दौर में बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट वायलेशंस के इल्जामात लगे, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लापता हो गए। मुस्लिम सोर्सेस और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी HRW ने इन वायलेशंस को खूब डॉक्यूमेंट किया है। कश्मीरी मुसलमान महसूस करते हैं कि उन्हें स्टेट की तरफ से वायलेशन का निशाना बनाया गया है। कश्मीरी पंडित एक्सोडस, इसी दौर में 1990 के शुरू में वादी में रहने वाले कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बड़ी तादाद में हिजरत कर गए। उन्हें मिलिटेंट्स से धमकियां मिली, कुछ को कत्ल भी किया गया। इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर अलग अलग राय हैं। कुछ कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि ये उस वक्त के गवर्नर जगमोहन की पॉलिसी थी ताकि मुसलमानों पर सख्त एक्शन लिया जा सके। पंडित्स और इंडियन गवर्नमेंट मिलिटेंट्स को जिम्मेदार कहते हैं। जो भी हो, इससे कश्मीरी सोसाइटी का रंग बिरंगा कैरेक्टर मुतासिर हुआ और मसला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस पर अफसोस करते हैं और चाहते हैं कि हमारे पंडित भाई वापस लौटे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, 1993 में अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने मिलकर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APSC बनाई, जो कश्मीरी आवाम की सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करती है। आज का कश्मीर और मौजूदा सूरत हाल। 5 अगस्त 2019 इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरफा फैसले में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया, जिससे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गया और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस फैसले से पहले और बाद में कश्मीर में सख्त तरीन लॉकडाउन लगा। हजारों सियासी लोग गिरफ्तार या नजरबंद कर दिए गए। कश्मीरी मुसलमानों की मेजॉरिटी इस फैसले को अपनी पहचान, कल्चर और जमीन पर हमला समझती है। उन्हें डर है कि अब बाहर के लोग यहाँ बसेंगे और वो अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बन जाएंगे। उनका कहना है कि यह फैसला उनकी मर्जी के बिना लिया गया है, जो UN रेजोल्यूशंस के भी खिलाफ है। डेमोग्राफिक्स, आज भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है, खासकर वादी में। जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी है, लद्दाख के लेह में बुद्ध और कारगिल में शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है। इसके अलावा गुज्जर, बकरवाल, सिख और क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी है। मौजूदा हालात, करंट सिचुएशन। आर्टिकल 370 हटाने के बाद से कश्मीर में ऊपर से शांति दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, गुस्सा और घुटन का एहसास है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी डिप्लॉयमेंट जारी है। सियासी एक्टिविटी बहुत कम है। मिलिटेंसी कम हुई है पर खत्म नहीं। ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पर अभी भी सवाल है। लोग अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हैं।
تو دوستو یہ تھی داستان کشمیر، ایک ایسی وادی کی کہانی جسے اللہ نے بے انتہا خوبصورتی دی، لیکن انسانی سیاست نے اسے کانفلکٹ کا زون بنا دیا۔ یہاں کے لوگ، خاص طور پر مسلمان، صدیوں سے اپنی پہچان، اپنے حق، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ آج بھی بس امن، انصاف اور عزت کی زندگی چاہتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ صرف زمین کا نہیں ہے، یہ کروڑوں انسانوں کے فیوچر، ان کی خواہشات اور ان کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اوتھینٹک سورسز سے اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھیں۔ کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی، لیکن امید ہے اس سے کشمیر کی ہسٹری اور وہاں کے لوگوں کے احساسات کو سمجھنے میں کچھ مدد ضرور ملی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں، انہیں امن اور سکون اور انصاف نصیب ہو، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کشمیر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔